Hare Krishna. Hare Krishna. So I know the Kirtan stream starts at 8:30 p.m., but nevertheless we will start. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Govinda Govinda, Govinda Govinda, Govinda Govinda, Govind Hari, Gopala Gopala, 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 Gopal Hari. Nittai Gaurango, Nittai Gaurango, Nittai Gauranga Bolo Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jai Sachinandana Gaura Hari, Jai Sachinandana Gaura Hari, Sachi Mata Pranadana Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Sachi Mata Pranadana Gaura Hari, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Raman Hari, Govinda Jai Jai, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura, Haribo, Haribo, Haribol, Nitai Gaur, Haribol. जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका इस फ्राइडे के क्लास में स्वागत है। जितने भी लोग ये स्ट्रीम देख रहे हैं सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज हिज ग्रेस राम गिरधारी प्रभु ने मुझसे कहा कि वो कुछ कार्य के वजह से उलझे हुए हैं। क्या आप सीवुड्स के कांग्रीगेशन के लिए और जो ढेर सारे भक्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए कुछ कृष्ण कथा कर सकते हैं क्या? मैं हमेशा इसी चीज से आतुर में रहता हूं कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के दौरान अगर मैं कृष्ण भावनामृत के विषयों पर कुछ चर्चा कर पाऊं तो इससे मेरा शुद्धिकरण हो सकता है और आप जैसे पावन वैष्णवों के बीच जब हम इन कथाओं के बारे में चर्चा करते हैं, सवाल विमर्श करते हैं और उसको और गहरे रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें यही आस भरा रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी हृदय में जो मलिनता है वो किसी प्रकार से शुद्ध हो जाए। तो उस शुद्धिकरण होने से हम भगवत भक्ति की मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक बने और जिससे भगवान को प्राप्त करने के लिए और अग्रसर होकर उनके पथ पर हम आगे चलें। तो इसी उद्देश्य के साथ दिन भर हम यही सोचते रहते हैं कि आज भक्तों के समूह में हम क्या प्रस्तुत करें जिससे ये जो कठोर परिस्थितियां हमारे चारों ओर हम जो सुन रहे हैं रोज अखबारों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या इत्यादि इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी हमारे बंधुजन हैं उनके द्वारा सिर्फ कठोर परिस्थितियां और दुखद भरी कहानियां और दुखद भरी जो वार्ताएं जो हम सुन रहे हैं उसमें अगर हमें कुछ आनंद प्राप्त होना है तो उसका एक ही मात्र है, हरि कथा। हरि कथा ही एक ऐसा स्रोत है जिसमें दुख नामक का शब्द उनके शब्दकोश में है ही नहीं। तो इसलिए आज भगवान हरि के विषय में, कृष्ण के विषय में हम उनकी कथा के चलते उनके कथा के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने जब ये टॉपिक सजेस्ट किया, ये विषय सजेस्ट किया कि नंदलाला तालवन में, ये आज का विषय है। नंदलाला यानी कि नंद के पुत्र जो हैं भगवान श्री कृष्ण। और मैंने कहा कि नंदलाला तालवन में, तब तुरंत मुझे उत्तर आया कि कुछ दिनों पहले ही इस ग्रेस राम गिरधारी प्रभु ने अपने लेक्चर में, जहां पे उनका सीरीज ऑफ लेक्चर है कि किलिंग द डीमंस विद इन, स्लेइंग द डीमंस विद इन, यानी कि हमारे हृदय में जो असुर बसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ऐसे जो असुर बसे हुए हैं
उनको कैसे विनाश किया जाए कृष्ण कथा के द्वारा, वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक-एक लेक्चर में बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने एक-एक असुर को मारा और उससे हमारे हृदय के कैसे अनर्थ भी मिटते हैं, इसके बारे में चर्चा किया। तो सिर्फ कुछ दिनों पहले ही उन्होंने तालवन और धेनुकासुर वध के बारे में चर्चा किया, ऐसे मुझे सुनाई पड़ा। तो मैं बचपन से ही हिस ग्रेस राम गिरधारी प्रभु के लेक्चर सुनते आ रहा हूँ, काफ़ी आनंदमय और कृष्ण भावनामृत में आगे अग्रसर बनने के लिए सबसे अच्छा स्रोत उनके जो लेक्चर्स होते हैं, आज जो भी कुछ पढ़े हैं या आज जो भी कुछ हम कहना चाह रहे हैं, ये उनकी कृपा है और उनके मुखारविंद से जो सुन रहे हैं, उससे हम कुछ प्रबल बने और उनके लेक्चर्स भी मैंने सुने तो बहुत काफ़ी आनंदमयी थे। तो उसी पास टाइम को वैसे वैष्णव संस्कृति में ये कहा जाता है कि अगर एक वैष्णव उसको कह चुके हैं, तो उसके ऊपर हम कोई कह नहीं सकते। पर कृष्ण अनंत भी हैं, कृष्ण के अनंत गुण भी हैं, तो आज उसी लीला के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, जब ये कहेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा हाँ, प्रभु जी ये पता है, ये सुन लिया है, ये किस प्रकार से हुआ, ये किस प्रकार से उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। पर फिर भी अगर कोई नए सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक हो सकता है और उससे कुछ हम विषय आज सीखने की कोशिश करेंगे। ये लीला बहुत ही प्रमुख लीला है और इसमें बहुत सारे रस भरे जो रियलाइज़ेशंस हैं, वो इसमें भरे हुए हैं। तो इसलिए आज कोशिश करेंगे कि नंदलाला तालवन में ये विषय में हम विशेष रूप से तालवन के वन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तालवन का वन कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे और वहाँ पर क्या घटना घटी जिसके वजह से तालवन विश्व प्रमुख और व्रज में ही प्रसिद्ध हो चुका है। और श्रीमद् भागवत के पन्नों से भी हम ये देखेंगे कि तालवन के विषय में हमारे आचार्य गणों ने क्या कहा है। तो आइए चलते हैं इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है नंदलाला तालवन में। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी ये परंपरा है कि कोई भी विषय जो वैष्णव संप्रदाय में हम कहना चाहें, उसका ठीक तरीके से पहले मंगलाचरण हो। मंगलाचरण इसलिए कहते हैं ताकि हम सक्षम बने और हम उस व्यक्ति या उस जगह या कृष्ण की लीला या कृष्ण के बारे में या उनके पार्षदों के बारे में जब हम चर्चा करना चाहें, तो हमें मंगलाचरण करना आवश्यक है क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा शिष्टाचार है। क्या शिष्टाचार है? जिस प्रकार कलयुग में एक दूसरे को हम बहुत मुश्किल से उनकी गुणगान करते हैं। अगर आप ट्रेन में जाएँ, बस में जाएँ, तो आप हमेशा देखते हैं कि लोग निंदा वाक्यों में ही उलझे रहते हैं। एक दूसरे के बारे में निंदा करते रहते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो आधे से ज़्यादा अगर हम थोड़ा भी कान दें, 2 लोग अगर अफ़सर से ऑफ़िस से बाहर आ रहे हैं या वापस घर जा रहे हैं, तो हर दूसरे के बीच में एक ही कन्वर्सेशन होगा, एक ही वार्तालाप होगा कि मेरा बॉस कितना बुरा है और दूसरा कहेगा कि तुम्हारा तो ये हाल है, मेरा उससे बुरा हाल है। तो इस प्रकार से निंदाजनक रूपी जो वार्तालाप है, वही हमेशा चलता रहता है। कोई एक दूसरे का गुणगान करना असंभव है, बल्कि बहुत ही मुश्किल है। मगर वैष्णव संस्कृति में इस प्रकार नहीं है। जब हम किसी भी विषय के बारे में बात करना चाहें, तो सबसे पहले उसे उसकी वंदना करना अनिवार्य है। इससे हम सक्षम बनते हैं। इसलिए जब हम कोई भी पुस्तक आचार्य गणों का लेते हैं, चाहे वो श्रील प्रभुपाद जी का हो या हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आचार्य आए हैं, जैसे सनातन गोस्वामी का हो, रघुनाथ दास गोस्वामी का हो, जीव गोस्वामी का हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हो,
या श्री भक्तिविनोद ठाकुर का हो, उनके लिखे गए कई ग्रंथों में से कोई भी अगर हम ग्रंथ पढ़ना चाहें, तो पहले कुछ पन्ने हमेशा मंगलाचरण होंगे, जिसमें वो याचना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, या फिर गोवर्धन से, राधा कुंड से, व्रजवासियों से, या विशेष रूप से बाल सखाओं से, या गोपियों से, इत्यादि इत्यादि कई सारे श्लोक ऐसे होते हैं जिससे वे याचना कर रहे हैं कि आप हमारी कृपा जो है प्रदान कीजिए, जिससे हम कुछ शब्द ऐसे कह पाएं जिससे जो आने वाले भक्त हैं वो इस काव्य को या इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ हृदय में भक्ति और अग्रसर रूप से और उजागर हो सकता है। तो इस प्रकार से वह मंगलाचरण करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है वैष्णवा, जितने भी वैष्णव हैं, महाजनस्य गतस्य येन पंथा, यानी कि महाजन जहां जहां पर जिस पंथ पर चलते हैं, जिस पंक्ति में चलते हैं, उसी चलन हमें भी फॉलो करना चाहिए, वहीं पे हमें भी चलना चाहिए, उसी पथ पर हमें भी फॉलो करना चाहिए। हमें अलग से पथ ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अच्छा कच्चे रास्ते को बहुत बढ़िया उन्होंने कंक्रीट इत्यादि डालकर भक्ति में फुल 4 लेन हाईवे उन्होंने तैयार करके रखा है। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि उसी लेन में हम भी मार्ग पकड़कर चलें। तो अगर हम आचार्य गणों को देखें, तो वो जभी भी इन वनों के बारे में बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि सबसे बढ़िया वन है वृंदावन। वृंदा यानी कि तुलसी, और तुलसी से भरा हुआ वन वृंदावन के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, प्लेग्राउंड ऑफ गॉड। यहाँ पर उन्होंने कई सारी लीलाएं की। मगर इस वृंदावन को अगर देखा जाए, तो ये वृंदावन के चारों ओर और भी कई सारे वन हैं। और ये पूरा जो मंडल है इन वनों का, उपवन का, और कई सारे उपवन हैं, फॉरेस्ट एंड सब फॉरेस्ट। उपवन यानी कि वन से छोटा, ये अलग अलग वन एकत्रित होकर इसको ब्रज के नाम से जाना जाता है। वृंदावन उसमें से समुख सबसे प्रमुख वन माना जाता है, जहां पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। तो यहाँ पर उसके साथ ही कई सारे वन हैं, और यहाँ तक आचार्यगण कहते हैं कि मुख्यतया 12 वन हैं। मधुवन, महावन, भंडीर वन, कुमुद वन, लोह वन, भद्र वन, बेल वन, ताल वन इत्यादि कई सारे वन हैं जो इस वृंदावन या ब्रज के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसे कैसे बांटा गया है? यमुना की नदी बीचों बीच से दौड़ती है। कुछ वन यमुना के पश्चिम की ओर और कुछ वन जो है पूर्व की ओर पाए जाते हैं। इन हर एक वन में भगवान श्री कृष्ण रोज अपने बाल सखाओं और गोपियों के साथ अनेक अनेक लीलाएं रचते हैं। वो रोज उठते हैं और सोचते हैं कि कौन से वन में जाना चाहिए, आज कहाँ पे खेलना चाहिए, आज कहाँ गायों को चरना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे वन क्यों हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कई सारे 9 लाख गायों के नंद बाबा के घर पे गाय रखते थे, तो इसलिए उन सारे गाय को चरने के लिए वन पर लेकर जाते थे। ये सबसे आसान एक लीला है जहाँ पे गायों को चराना। अगर कोई गांव में जाकर गाय या भेड़ों को चराए हैं, उनको पता है कि ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब उनका पेट भर जाता है तो सब वापस आ जाते हैं एक ही साथ, सिर्फ उनको थोड़ा मार्ग दर्शाना है, सबके सब घर आ जाते हैं। और जब तक वो चर रहे हैं हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आराम करना है। ये बहुत ही एक अच्छा एक जॉब है, एक एक अच्छा एक कार्य है जो आज भी गाय गांवों में काफी सारे लोग करते हैं। तो उसी प्रकार चरवाहे थे भगवान श्री कृष्ण, और वे अपने गाय बैल इत्यादि को लेकर जाते थे, छोटे छोटे गाय को लेकर जाते थे और अनेक सारे वनों में चराया करते थे। इन इन सारे गायों को चराने के लिए मौका देते थे। तो उसी प्रकार एक दिन वे जो थे उन्होंने सोचा कि वे तालवन में जाएं, और तालवन में जाकर
इन सारे गायों को और गाँव को, इन सारे जो गाय बैल हैं, इन लोग को चराने के लिए लेकर जाएं। तो इसलिए चलते हैं हम भी उसी नजरिए के साथ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, और उनके चलने के साथ साथ जैसे ही वे अपने गाय लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक गाय नहीं, दो गाय नहीं, कई सारे गाय होते हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वो घो धूली जब उस वृंदावन के रेत पर पड़ती है तो धूल उड़कर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से जो घुंघराले बाल हैं, उनमें और भी सजावट और बना बढ़ा देते हैं। यही घुंघराले बालों पर जो मिट्टी उड़ती है, उसी को भीष्म देव ने महाभारत के युद्ध में भी देखा था, जब भगवान श्री कृष्ण जो रथ का पहिया था उसको सुदर्शन के रूप में धारण कर कर भीष्म देव की वध करना चाहते थे, तब उनकी ऊपर का अंग वस्त्र जो धीरे धीरे सरकते नीचे गिरा, और बाजू में जितने भी घोड़े थे, उनके चलन के कारण जितने भी धूल उड़ रही थी वो उनके केशों पर लगकर, उस सूरज की किरणें उनके केशों से लगकर, उन धूल से चिटक कर भगवान श्री कृष्ण की जो थोड़ा से जो पसीना आ रहा था उनके मुखमंडल पर, उनके चंद्र जैसे मुखमंडल पर जब पसीना आ रहा था, उसको देखकर भीष्मदेव पूरी तरह से शरणागत हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को गोपियां हमेशा देखना चाहती थी, इसलिए वे बाहर आते थे और वो देखते थे कि भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन की तरफ, तालवन की तरफ आज जा रहे हैं। और जैसे ही वे जाते थे, उनके सखा जितने भी थे, वे भी अपने अपने गाय बैल इत्यादि, क्योंकि सब लोग चरवाहों के बैठे थे, उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, तो वे भी अपने सारे बैल और गाय इत्यादि लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ चलने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के साथ चलने लगे, बलराम जी भी उस दिन भगवान के साथ, श्री कृष्ण उनके दाऊ भैया थे, बड़े भाई थे, वे भी उनके साथ अपने गाय और बैलों को साथ में लेकर चल रहे थे और तालवन की ओर। और जब वो तालवन की ओर जा रहे थे, हमारे आचार्य गण भी उसी की तरह कैमरा लेकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे और कह रहे थे कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, और वह अच्छी तरह से बता रहे हैं हमें। तो हमें सबसे पहले ये चीज करना चाहिए कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हर वन के अंदर जाने से पहले हमें उसे जरूर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए दंडवत प्रणाम हम क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि ये 12 जो वन हैं, ये अलग-अलग कृष्ण के रूप हैं। जैसे वृंदावन का जो वन है, ये भगवान श्री कृष्ण का सर है। ताल और कुमुद वन जो है, भगवान श्री कृष्ण की छाती है। बहुलवन और महावन जो है, भगवान के बड़े-बड़े जो हैं, वो उनके बाहु हैं। बहुलवन और महावन उनके दोनों बाहु हैं, बाहु यानी कि उनके हाथ। नंदीग्राम जो है उस भगवान के उंगलियां हैं। बंडीरवन जो है भगवान के दिव्य चरण हैं। तो इस रूपी ये अलग अलग वन जितने भी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को ही दर्शाते हैं। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो हमें जरूरत है कि हमें हमेशा मंगलाचरण और उस वन को नमस्कार करें। इसलिए हरिवंश में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, जिसको पढ़ते ही हम सोच सकते हैं कि ये तालवन कैसा था, या ये तालवन कैसा दिखता था। हरिवंश में कहा गया है, सतुदेशा समस्निग्धा सुमहान कृष्ण मृत्तिका दर्भपाराय स्तुति भूतो लोस्त्र पाषाण वर्जिता। वहां का जो हरिवंश में कहा गया है कि किस प्रकार से तालवन का प्रदेश है। वहां की जो धरती है, वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही मृदुल है, कठोर पत्थर नहीं है, बहुत ही सुंदर अच्छे रेत बिछे हुए हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जो उनके उनके पैर में बिल्कुल चप्पल इत्यादि नहीं पहनते थे, तो वे वहां पर अच्छी तरीके से चल सकते थे और अच्छी तरीके से आराम से चल सकते थे, उनके पैर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। तो उस प्रकार से तालवन के उस जगह पर वे बहुत ही मृदुल जगह पर चलते थे। वहां की धरती बिल्कुल काली थी और वहां पे कई सारे दर्भ के जो
घास थे वे उगते थे और वहां पे कहीं पे भी कंकर और पत्थर बिल्कुल नहीं थे। ऐसा था तालवन का जो वन। और वहां पर आचार्यगण और कहते हैं कि तालवन में कई सारे छोटे छोटे जो हैं, वहां पे पौंड भी पाए जाते थे, कुंड भी पाए जाते थे। वहां पर चमेली चंपा के फूल नहीं उगते थे, वहां पे सिर्फ कमल के फूल उगते थे। और कौन से कमल के फूल? वे कमल के फूल जो नीले कलर के हैं। यहां तक कहा गया है कि पूरे वृंदावन में सबसे नीला रूपी कमल कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि वो जैसे नीला चीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, जो तो वे जो हैं पूरी तरह से एक कमल पुष्प के समान है। मगर तालवन में असली रूप में उस कमल के पुष्प, नीले कलर के कमल के पुष्प उगते हैं, वे देख सकते हैं। और इसको जैसे ही हम सुनते हैं, तो आचार्यगण कहते हैं कि जो इस वृत्तांत के बारे में, तालवन के सिर्फ वन के बारे में सुनते हैं, तो उनकी मन को हमेशा शांति प्रदान होती है और उनको लगता है कि आज के आज, अभी के अभी वहां पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें हमारे जो मेंटल स्ट्रेस होते हैं उसे रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लॉकडाउन में बैठे हैं और एक छोटे से विंडो से अपने घर के शीशों से अगर आप बाहर देखें, तो आपके विंडो से अगर आप बाहर देखें, तो आप बिल्कुल ये चीज देख सकते हैं कि बाहर कितना प्रकृति कितना सुंदर है। और प्रकृति सुंदर होने के कारण हमें मन में ये उत्साह आता है कि हम भी बाहर जाएं और एक बार प्रकृति को अच्छी तरह से हम देखें। तो उस नजरिए से अगर हम देखें, तो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि जब ये कोविड लॉकडाउन सब हट जाएगा, तो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी ऐसे प्रकृति के पास जाएं जो वृंदावन के वन हो। क्योंकि वृंदावन का वन जो है भौतिक रूप से सुंदर है ही, मगर आध्यात्मिक रूप से भी ये सर्वोपरि है। यानी कि भौतिकता उसमें है ही नहीं। कृष्ण की रस से भरा हुआ है ऐसे एक एक वन, उनमें से तालवन भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारे कविराज गोस्वामी, वे जो हैं, उन्होंने कहा है कि सारी ये जो चीजें हैं, सारे ब्रज के जो चीजें हैं, उन्होंने हर एक चीज को छोटे छोटे श्लोकों में उन्होंने बता दिया है। जैसे वेदांत सूत्र होते हैं, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, इतने बड़े जो तत्व है उसको छोटे छोटे तत्वों में कहा जाता है। तो उसी प्रकार तालवन को जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जो आचार्य हैं नारायण भट्ट गोस्वामी, उन्होंने ब्रज भक्ति विलास में तालवन को पूरी तरह से दंडवत करते हुए कह रहे हैं कि कैसा है ये तालवन। मोक्षाय मुक्ति रूपाय हरिमुक्ति प्रदायिने, नमस्ते तालाय रामाय ताल शोभा विवर्धिने। वो कहते हैं हे तालवन, वो नाम नहीं लेते तालवन का, वो कहते हैं हे मोक्षधारी। यानी कि वो वन जो बिल्कुल हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है, इस सांसारिक दुखों से हमें परे ले जा सकता है, सिर्फ उसका नाम ही तालवन है। मोक्षाय मुक्ति रूपाय, मैं आपको नमन करता हूं। आप किसके वजह से आए यहाँ पर? ताल जो हैं वृक्षों के कारण आए। यहाँ पर कई सारे ताल के वृक्ष हैं। ये ताल वृक्ष कौन से हैं? अंग्रेजी के ताल यानी कि टॉल वृक्ष भी कहा जाता है कहने के लिए। ताल यानी कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ जिसमें फल लगते हैं, बहुत अच्छे तार फल फल लगते हैं और बहुत जूसी होते हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट होते हैं, रसीले होते हैं। आजकल की चीज में कहा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि डेट पाम जो खजूर के होते हैं, मगर वो खजूर के नहीं हैं, पर उस साइज के, उस लेंथ के, उस हाइट के वृक्ष हैं। मगर विशेष रूप से एक ताल फ्रूट उसमें मिलता है जिसकी सुगंध अत्यंत खुशबूदारी है और उसमें उसमें बहुत सारा रस भरा होता है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उस जगह को नमन करता हूं जो मोक्षधारी है, जहां पे ऐसे बड़े बड़े ताल के वृक्ष हैं। तो ये सारे गौ बाल कृष्ण अपने बछड़ों के साथ और अपने गैयों के साथ जा रहे हैं। और इसका सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी और श्रीला प्रभुपाद दोनों कृष्ण बुक में कहते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चे जाते हैं।
वैसे तो थे ये बच्चे 6-7 साल के। जब बच्चे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने घर छोड़कर अपने सहपाठियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, वैसे तो बच्चों के मन में शिक्षण से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम खेल-कूद कैसे करें? खेल और कूद जो है बच्चों को पूरी तरह से डिफाइन करता है। अगर बच्चों में खेल-कूद का जो भावना नहीं है, तो हमें लगता है कि उनमें कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ न कुछ कमी है। और ये थे ब्रज के बच्चे, बिल्कुल गाँव के बच्चे और उनके साथ थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो वे नहीं समझते थे कि वे कृष्ण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे समझते थे कि ये मेरा दोस्त है। ये नंद बाबा के घर में रहने वाला ये जो कृष्ण है और ये जो बलराम है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। उस प्रकार से वे उनके साथ चलते थे और चलते-चलते किस प्रकार से चलते थे, कृष्ण पुस्तक में ये बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी की, किस प्रकार से वो लोग चलते थे। ये बच्चे बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं चलते थे। पहले सारे गायों को जाने देते थे। गाय के पीछे-पीछे चलते थे। कोई एक के कंधे के ऊपर चढ़ जाता था और कहता था कि तुम मेरे गाय हो, तुम मुझे चलाओ। और दूसरा लड़का उसको कंधे पर लेकर उसको चलाता था। दूसरा लड़का ऊपर देखता था कि पेड़ की टहनी पर एक तोता बैठा है और वो तोता कुछ कह रहा है। तो पेड़ की टहनी में तोते को देखकर वो भी यहाँ पर तोते की तरह बात करने लगता है। उसको टीजिंग करने लगता है, उसका मज़ाक उड़ाने लगता है, तो तोता उस टहनी से उड़ जाता है। कोई चील की जो परछाई है जब ज़मीन पर पड़ती है, चील ऊपर उड़ता है और उसकी परछाई जब ज़मीन पर पड़ती है, उस परछाई को देखकर ये लड़का सोचता है, ये ग्वाल-बाल सोचता है कि मैं भी चील हूँ और वो भी उस धरती पर चील की तरह चलने लगता है, उड़ने लगता है। कोई मेंढक के पास में जाकर बैठता है और मेंढक जिस प्रकार से आवाज बनाता है, ये भी बनाने लगता है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ों को खेल कूदते हुए ही ये लोग जा रहे हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बस इस दृश्य को देख ले, क्योंकि सबसे आनंदमयी है। सब लोग यही चाहते हैं कि कोई कंप्यूटर-वम्प्यूटर पे काम ना करे। सब लोग यही चाहते हैं कि ऐश और आराम की ज़िंदगी हो। सबसे ज़्यादा आराम की ज़िंदगी इन ग्वाल-बाल बच्चों में है। वे जाते थे चराने के लिए और उसके बाद आनंद ही आनंद लेते थे। तो इस प्रकार से वे जाने लगे और तालवंत के पूरी तरह से वहां पर पहुंचे और स्कंद पुराण मथुरा कांड में भी कहा गया है कि तालवन कितना महान है। अहो तालवनम पुण्यम यत्र तलयर हतो सुरा हिताय यादवनम च आत्म क्रीडन कयंच। ये वो तालवन है जहां पे यादवों के नाथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी लीलाओं के लिए बना हुआ है और जहां पर भगवान ने एक असुर का संहार किया ताल वृक्ष के ऊपर, ऐसा मथुरा खंड स्कंद पुराण में कहा गया है। तो उस तालवन में वहां पर पहुंचे और उन्होंने गायों को चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और गाय अपने अपने चर रहे थे और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, भली भांति बहुत तरीके से खेल रहे थे और बहुत तरीके से खुशी होकर खेल रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही वे खेल रहे थे, बच्चे खेलने के बाद क्या होता है, बच्चे थक जाते हैं और उनको लगता है भूख। मैया ने पोटली बांधी होगी और वहां पर कई सारे भोजन और व्यंजन दिए होंगे, मगर आज बच्चों को ऐसे नहीं लग रहा था, ग्वाल बालों को ऐसे नहीं लग रहा था कि आज हम कुछ मैया का टिफिन खाएंगे। उनको लग रहा था कि आज कुछ अलग खाएंगे। तो जैसे ही वो पूरी तरह खेल चुके थे, वे आराम कर रहे थे, एक भगवान श्री कृष्ण की गोद में लेटा हुआ था एक ग्वाल बाल, मधुमंगल भी था, वो भी लेटा हुआ था, सुबल भी था, श्रीधाम भी था। ये सारे ग्वाल बाल एक साथ खेल रहे थे, लेटे हुए थे। बलराम जी भी खड़े होकर एक छोटी सी जो टहनी है उसके उस पर हाथ रखकर एक बड़े से वृक्ष से पीठ रखकर खड़े हुए थे। और उसी समय जब वो इस प्रकार से खेल रहे थे और बड़ी भूख लग रही थी, वहां से एक धीरे मंद गति में थोड़ी सी हवा चली और जैसे ही वो हवा चली, उस हवा के साथ एक सुगंधित जो फ्रेग्रेंस होता है, एक सुगंध जो होता है, उस वन में एक सुगंधित
जो है हवा चलने लगी और उस सुगंधित हवा कहाँ से आ रहा था? उस ताल वन के अंदर से आ रहा था और वो ताल जो फल हैं, उसका मीठा सुगंध वो हवा लेकर वो सुगंधित हवा इन सब के नाकों के पास पहुँचा और जैसे ही ये ग्वाल-बाल इसको सुगंधित हवा को श्वास लेने लगे तो उनको लगा यहाँ पर काफ़ी सुगंधित फल हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फल हैं जो हमने पहले कभी नहीं खाए हैं। और उनके मन में ये आस पैदा हुआ कि कहीं न कहीं हमें ये जो है, ये फल भल बिल्कुल खाने हैं। और तुरंत उनको लगा कि ये फल खाने पड़ेंगे क्योंकि इतना अच्छा सुगंध आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत किसको संबोधित किया? कृष्ण को। नहीं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि यहाँ पर ग्वाल-बालों ने कभी भी कृष्ण से डायरेक्ट बात नहीं की, सबसे पहले बात किया बलराम जी से। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि ग्वाल बालों ने डायरेक्ट बलराम जी से इस बार बात किया। क्या बात किया? 10वें स्कंद 15वें अध्याय और 21वें श्लोक श्रीमद् भागवत में कहने लगे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निभर हना इतो विदुरे सुमहाद वनम तालालि संकुलम। राम राम महाबाहो, ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। राम राम यानी कि बलराम जो कृष्ण के दाऊ भैया हैं, महाबाहो जिनके बाइसेप और ट्राइसेप बहुत अच्छे हैं, यानी कि जिसके बाहु जो हैं बहुत बलवान हैं, बलशाली हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक बार हमारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था, प्रभुपाद जी ये बताइए कि बलराम बहुत शक्तिशाली हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं? कौन है सबसे बड़े शक्तिशाली? किसकी बाहुओं में ज्यादा ताकत है? वैसे तो बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, दोनों भगवान ही हैं। बट फिर भी भक्त थोड़ा बहुत कंपेयर करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि कौन है? तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि निश्चित रूप से ही बलराम सबसे शक्तिशाली हैं, कि बलराम दाऊ भैया हैं और उनका नाम ही शक्ति ही उनका स्रोत है और वे बिल्कुल हम जानते हैं कि बलराम ही हैं। कई सारे लोगों ने कहा नहीं, मगर कितने सारे असुरों को कृष्ण ने मारा है, तो कृष्ण की बाहुओं में ज्यादा शक्ति है। तो ये प्रश्न विवाद पहुंचा श्रीला प्रभुपाद जी के सामने और श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा इसका उत्तर बहुत सरल है। और वे वृंदावन में थे। उन्होंने कहा कि सुबह जाकर मंगलारती हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में देखिए, आपको उसका उत्तर समझ जाएगा। जैसे ही भक्तगण गए और प्रभुपाद जी से पूछे इससे क्या समझना है, आज हम मंगल आरती में आए हैं। बोले देखिए, हमारी जो बीच का ऑल्टर है, जो कृष्ण बलराम का वृंदावन में जो ऑल्टर है, वहां पर देखिए बलराम जी कैसे खड़े हैं। बोले कि बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। तो बाबा जी कहे कि वह बलराम जो पूरे संसार और भूमंडल और 14 भुवनों को अपने हाथों से पूरी तरह से संभाल सकते हैं, मगर वो किसके शोल्डर पे हाथ रख के खड़े हैं, किसके कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो कृष्ण किसको कंधा दे रहे हैं? बलराम जी को, जो पूरे 14 भूमंडल को पूरी तरह से अपने हाथों में लेकर संभाल रहे हैं। तो कौन बड़े? तो कृष्ण, कृष्ण महाबाहो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण को कभी छोड़ते नहीं थे। कृष्ण को हमेशा अति प्रिय थे कृष्ण से, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये उन्होंने नाम दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावनामृत संघ इस प्रकार से उन्होंने नाम नहीं रचा। उन्होंने बिल्कुल कृष्ण का नाम अपने संघ में, अपने सोसाइटी में बिल्कुल उन्होंने ऐड किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि कृष्ण के पास अति शक्तिशाली है, पर अति शक्तिशाली होने के बाद भी यहाँ पर ग्वाल बाल जो हैं किसको संबोधित कर रहे हैं? यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं बलराम जी को। राम राम महाबाहो, हे बलराम जी, जिनके बाहुओं में अति बलशाली शक्ति है। कृष्ण दुष्ट निभर हना। तुरंत वो बोले मगर कृष्ण, हे कृष्ण, आप तो सारे जो गलत काम करते हैं उनको दंडित करने वाले, दुष्ट निबर हना। इतो विदुरे सुमहाद, यहां से थोड़ी दूर में एक वन है।
और उस वन में क्या है? वनम तालालि संकुलम। और वहां पे कई सारे पाम ट्रीज हैं, वहीं कहीं कई सारे ताल के वृक्ष हैं, और वहां पे अच्छे अच्छे फल उगते हैं। क्या उसका सुगंध आप दोनों को नहीं आ रहा? ऐसे ग्वाल बाल बलराम जी को टटोलते हुए कह रहे हैं। और जैसे ही ये कहा, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि बलराम को ही महाबाहो क्यों कहा? वैसे श्रीमद् भागवत में कई सारी जगह हैं जहां पे कृष्ण को भी महाबाहु के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि पहले ही स्कंद में अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वम एको दहयामानाम अपवर्गोसी संसृते। कि कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी अलग अलग अंतरंग शक्तियों का कोई अनुमान नहीं कर सकता। आप जो हैं अपने भक्तों के हृदय में इतना कृपा प्रदान कर देते हैं कि उनमें कभी भी डर ही नहीं लगता। और जितने भी भौतिक दुखद हैं, उन सारी चीजों को आप तुरंत एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, और हमेशा मुक्ति के पथ पर आप चलने के लिए उनको अग्रसर बना देते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा। अभयंकरा यानी कि वे भक्तों के अभयधारी बनते हैं, उनके मन में फियरलेसनेस, बिल्कुल डर पैदा नहीं होता। इस प्रकार से कार्य आज आप कर देते हैं। तो कृष्ण को भी महाबाहो कई बार कहा गया है। जैसे कि 10वें स्कंद में भी कहा गया है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सला भद्दवान पिता सल्वेन सौनिकेन यथा पशु। जब शल्व द्वारका में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को लेकर चले गए, तब कहा कि हे कृष्णा, जिसके हाथ बहुत मजबूत हैं, देखिए कि आपके पिता को शल्व लेकर जा रहा है, आप नहीं देख रहे हैं इस चीज को? तो इस प्रकार कृष्ण को भी महाबाहो के नाम से संबोधित किया गया है। वैसे हमेशा श्रीमद् भागवत में जब भी मुश्किलें आई हैं, लोग कृष्ण के पीछे ही भागे हैं, कृष्ण से ही निवारण करने के लिए याचना की है, और कृष्ण को ही कहा गया है। जैसे कि पहले स्कंद में हम देखते हैं उत्तरा ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने याचना की। सबसे प्रसिद्ध श्लोक, जब अश्वत्थामा का जो अस्त्र उनके गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उसको मारने के लिए आ रहा था, तो उत्तरा ने चीख कर कहा, उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, हे जगत के नाथ, हे जगतपते, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही महायोगिन हो, आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। कौन है वो व्यक्ति आपके अलावा जो इस संसार में मुझे मृत्यु से बचा सके? तो इस प्रकार हमेशा भक्त कृष्ण को ही संबोधित करते थे, मगर हमारे आचार्यगण यहाँ पर इसलिए तालवन में सबसे पहले ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, ग्वाल बाल जो हैं, कृष्ण से बिल्कुल संबोधित नहीं कर रहे हैं, पहले कहें राम राम महाबाहो। और जैसे ही ये सुना बलराम जी से, तो बलराम जी से कहा, आपको ये सुगंधित फलों के सुगंध नहीं आ रहे हैं? आपको नहीं लगता हमें खाने चाहिए? तो बलराम ने कहा, जाके तोड़ लो, खा लो, कौन मना कर रहा है? ये सारे वन हमारे ही हैं। यहाँ पर जितने भी फल पुष्प इत्यादि हैं, ये सब हमारे लिए हैं, जाके तोड़ लो, खा लो। तो बच्चे कहने लगे, अरे बलराम जी, आपको नहीं मालूम, ये तालवन जो है, इसमें अच्छे अच्छे ताल के फल मिलते हैं, और ये बहुत ही रसीले होते हैं। मगर यहाँ पर एक कठिनाई है, एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस ताल वन में एक बड़ा सा असुर रहता है, जिसका नाम है धेनुकासुर। और वो इस तालवन के चारों ओर घूमता है, और उसने अपने घर वालों के साथ इसकी पूरी निरीक्षण बना के रखी है। सीसीटीवी कैमरा लगाया है। यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ एक ही अपने राजा की सेवा करता है, जो है कंस, जो मथुरा में बैठा हुआ है। इस ताल वृक्ष के फल को इंद्र भी खाना चाहता है, पर वो नहीं खा सकता, क्योंकि धेनुकासुर उसे भगा देता है। इस ताल का फल सिर्फ एक ही व्यक्ति का आस्वादन ले सकता है, वो है कंस। तो तुम क्या इस विषय को नहीं जानते बलराम?
इसलिए हम तो नहीं जा पा रहे हैं। तो बलराम जी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग क्यों फिक्र करते हो? जाओ, धेनुकासुर को मार लो और उसके बाद ताल वृक्ष से ताल फल तोड़ लो। और जैसे ही ये उन्होंने टटोल कर पूरी तरह से हास्य रूप में उनको चुनौती देते हुए कहा, तो हमारे आचार्यगण गर्ग संहिता में जाकर कहते हैं कि किस प्रकार से ग्वाल बाल जो बच्चे थे उन्होंने भी सोचा कि अच्छा बलराम जी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जाकर इन लोगों को मार लें, तो हमें बलराम जी का भी मजाक उड़ाना चाहिए। देखिए ये होता है सख्य रस, जो वैकुंठ में पाए नहीं जा सकता। वैकुंठ में अगर आप जाएंगे तो हमेशा भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाएंगे। हम हमेशा उनके सेवक हैं। मगर वृंदावन एक ऐसी धरती है जहां पे अन्य रसों का भी आस्वादन होता है। वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस इत्यादि। तो ये सारे रसों को अगर हमें आस्वादन करना है तो हमें ब्रज भूमि के दर्शन और ब्रज भूमि में निवसित जो ब्रजवासियों हैं उनकी शरण में जाकर और उनसे जब तक कृपा प्रदान नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर एक सख्य रस का भाव है, जहां पर वे ये नहीं सब समझते कि बलराम जी जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण की दाऊ भैया है। वे बस यही सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है और हमें हंसी मजाक करना चाहिए। इसने मेरे ऊपर हास्य रूप से उसने मजाक उड़ाया कि मैं जाकर धेनुकासुर को मार दूं, तो मुझे भी हंसी मजाक में बलराम को भी थोड़ा टटोलना चाहिए। तो बच्चों ने भी कहा, बलराम जी मुझे लगता है कि आपके बाहों में ज्यादा शक्ति नहीं है। अब देखिए 2 ही मिनट पहले उन्होंने कहा कि राम राम महाबाहो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, मगर हास्य रूप में इस प्रकार से कह रहे हैं। हमने तो हमेशा देखा है कि कृष्ण जो हमारे बाजू में बैठे हैं और कृष्ण सुन रहे थे ये सारी चीज, ये दोनों क्या बात कर रहे थे। बलराम जी आज कभी बोलते नहीं, हमेशा आते हैं, बिल्कुल मजाक करते हैं और पूरी तरह खेलते कूदते हैं। आज वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। तो कृष्ण बोले, अरे मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? बोला, नहीं नहीं रुको रुको बताते हैं। ये हमारे साथ जो कृष्ण बैठे हुए हैं, हमने तो हमेशा यही देखा है कि इन्होंने सारे असुरों का संहार किया है और आप तो बस थोड़ा बहुत एक दूसरे असुर को 2-3 मुक्का देकर आप कार्य निपटा देते हो। हमने तो कभी सीरियसली देखा ही नहीं है कि आप किसी असुर को मारते हो, हमेशा कृष्ण ही मारते हैं। कृष्ण ही सबके चौके छुड़ाते हैं। मगर आपने तो किसी को मारा ये हमने देखा नहीं। ये तो हमको तो सीरियसली डाउट हो रहा है कि आप बस हमारे साथ आते हैं कि हम जो पूरी तरह मजा लेते हैं, उसके बाद उस मजे में शामिल होने के लिए आते हैं। हमें नहीं लगता कि आपके पास कुछ ऐसा शक्ति है जिससे आप इनको तोड़ सकते हैं। तो बलराम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कह रहे हैं कि ये बच्चे जानते नहीं है कि बलराम जी की शक्ति कितनी है। फिर भी बच्चे बोल रहे थे, देखो बलराम जी, अगर आपको इच्छा इच्छा नहीं है, अगर आपको इच्छुकता नहीं हो रही है कि आप इस ताल फल को खाएं और आप इस धेनुकासुर का वध नहीं कर सकते हैं और हाँ हमें ये फल नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो एक बात बता दीजिए, हमारे साथ कृष्ण है। हम कृष्ण से याचना करेंगे, बोलने से पहले वो उस असुर को मार देंगे और हमें पूरी तरह से जो है ये ताल के वृक्ष हमें प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने टटोला बलराम जी को, बलराम जी मुस्कुराए और तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर भागने लगे ताल वन की ओर और कहा कि मेरा पीछा कर सको तो कर पाओ। सारे बच्चे चौंक गए, ये कैसे हो गया? बलराम जी जो थे अभी तक सुन रहे थे, अभी ऐसा लग रहा है कि हमारे जो तीर जैसे जो हमारे जो शब्द थे, वे बलराम जी को लग गए। ऐसा लग रहा है अभी कार्य सिद्ध कर देंगे, हमें ताल फल मिलेगा। इस प्रकार सोचते रहे तो कृष्ण ने कहा, भैया दाऊ भैया तो निकल गए, वो अभी अकेले ताल सारे वन के अंदर जाकर सारे ताल फल खा लेंगे। हम इधर के इधर ही बैठे रहेंगे, वो तो भाग गए, हमें उनके पीछे भागना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा, चलो 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 हम भी चलते हैं, भगवान के पीछे भागते हैं। तो वो भी बलराम जी के पीछे पीछे भागे और सब लोग ताल वन के अंदर आ गए। कुछ लोगों के मन में अभी डर था कि कहीं से धेनुकासुर ना आ जाए, वो असुर ना आ जाए। धेनुका यानी कि संस्कृत शब्द में धेनुका का अर्थ है गधा। वो असुर का जो रूप था वो गधे का रूप था। वो गधे के रूप में असुर माना जाता था।
और वो गधे के रूप में आवाज करता था। तो उसके पीछे भी एक कहानी है कि वो कैसे इस गधे के रूप में असुर बना। उसका असली नाम था सहर्षिका। और उस सहर्षिका नामक का जो व्यक्ति था, वो एक दिन गंधमदन पर्वत के पास, वही पर्वत जिसको हनुमान जी लाते हैं रामायण में, तो उसी प्रकार उस गंधमदन पर्वत में कई सारे अपने अ, अप्सरा स्त्रियों के साथ मौज मनाने के लिए वो वहां पर गया और जोर जोर से हंस रहा था, टहल रहा था। उसी गंधमदन पर्वत के एक चोटी पर एक गुफा के अंदर दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ये जोर-जोर से हँसकर गधे के रूप में पूरी तरह से हँस रहा है और आजू-बाजू क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं है और इस प्रकार से पूरी तरह से विध्वंस मना रहा है, तो दुर्वासा मुनि ने उसे शाप दिया कि तुम इस गधे के अनुसार तुम कार्य कर रहे हो, इसलिए अगला जन्म तुम्हारा गधा ही होगा, तुम एक बहुत बड़े असुर बनोगे और तुम सबको परेशान करते रहोगे। जब ये सहर्षिका ने सुना तो उसने कहा कि क्षमा महाराज, क्षमा दुर्वासा मुनि, आप मुझे कुछ ऐसा कार्य बताइए जिससे मेरी इससे बाहर न मैं निकल पाऊँ। ये सहर्षिका जो थे, ये प्रहलाद जी के वंशज में आने वाले एक व्यक्ति थे और प्रहलाद जो थे विरोचन के पुत्र इत्यादि जो हिरण्यकशिपु उनके लाइन में आने वाले एक व्यक्ति थे और उनके वंशज में आने वाले व्यक्ति थे और उनको शाप हुआ कि वे धेनुकासुर बन जाएँ। तो जब वह नरसिंह देव के रूप में प्रहलाद महाराज जी के सामने आए, तो नरसिंह देव ने ये वरदान प्रहलाद महाराज जी को दी थी कि आपके वंशज के किसी और को मैं हत्या नहीं करूंगा। ये नरसिंह देव ने शपथ दी थी और उस शपथ में बल्कि ये सहस्त्रिका है, ये उन्हीं के वंशज में आया हुआ दूसरा धेनुकासुर है। इसलिए कृष्ण उसे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए आचार्यगण कहते हैं इसलिए ग्वाल बाल बच्चों ने बहुत ही सूझबूझ धारण कर बलराम जी को ये कहा, राम राम महाबाहो। तो बलराम जी को कहा कि तुम धेनुकासुर को मारो, कृष्ण नहीं मारेंगे। उनको मालूम था कि कृष्ण वो काफी ज्ञानी थे हमारे बच्चे। तो आचार्यगण इस रूप से देते हैं कि कृष्ण भी चाहते थे कि बच्चे जो हैं बलराम जी को ही संबोधित करें। तो बलराम जी वहां पर पहुंच गए और सारे बच्चे दौड़ते-दौड़ते पीछे पहुंच गए। धेनुकासुर का कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, कौन कहाँ कौन-सी झाड़ी के पीछे है, कहीं दिख नहीं रहा था। और तुरंत परीक्षित महाराज भी उत्सुकता से सुन रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बलराम जी वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा? बल प्रविश्य बहुभ्यायाम तालन संपारिकंपयन फलानि पत्यायांश मातन गाजा इवाउजसा। 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी उस ताल वन में घुसे और घुसने के बाद जैसे ही उन्होंने ताल वृक्ष को देखा जो बहुत ही ऊंचा था, वे समझ गए कि बच्चे क्यों कह रहे थे, क्योंकि इतना ऊंचा तो वो फल तोड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों के साथ उस ताल वन के वृक्ष को उन्होंने जकड़ के पकड़ा। जिस प्रकार एक मदमत्त हाथी कैसे एक वृक्ष को तोड़ने लगता है या फिर उससे फल निकालने की कोशिश करता है, उसी प्रकार बलराम जी अपने दोनों हाथों से उस वृक्ष के जड़ को पकड़े और हिलाने लगे, जिससे बड़े-बड़े जो ताल के जो फल थे, जिससे सुगंध प्रदान करने वाली वो ताल फल एक-एक करके नीचे गिरने लगे। देखिए हमारे आचार्यगण का कैमरा और लेंस कितना सही है। वो कहने लगे कि वो फल किस प्रकार से गिरे। वो फल इस प्रकार से गिरे, वो गिरने के बाद बाउंस नहीं हुए। वो नारियल नहीं थे कि एक बार गिर गया तो किसी का सर फूट गया। वो इतने रसीले थे कि वो जैसे ही गिरे वो टूटे और उससे फचक कर कर आवाज निकलने लगी। और बल्कि वो जब ताल फल जब वृक्ष के ऊपर था, तो वहीं पर ही वो सुगंधित था। जब वो पूरी तरह टूट गया तो उसका सुगंध और फैल गया चारों ओर और सारे बच्चे जितने भी थे ग्वाल-बाल उनके नाक के अंदर ये सुगंध चला गया और वो पूरी तरह से मदमत्त हो गए कि अब तो ये ताल फल खाना ही है।
मधुमंगल 2-3 अपने आजू-बाजू रखने लगे, लड्डू प्रिय मधुमंगल वो सोच रहे थे कि आज मैं खाऊँगा। श्रीधाम 2-3 लेने लगा। पर ये जो आवाज़ आई ये जो आवाज़ आया इस फल के गिरने के वजह से इ उससे एक असुर जो धेनुकासुर था, जो झाड़ियों के पीछे सो रहा था, उसे ये आवाज़ आया और वो उठ गया। उसको पता चल गया कि कुछ घुसपैठी आए हुए हैं जो मेरे इस फल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दौड़ता-दौड़ता चला आया कि कौन है वो घुसपैठी, किसकी ये मजाल कि ये मेरे वन के अंदर आकर जिसको मैं संरक्षित रख रहा हूँ, सिर्फ़ कंस के लिए है ये फल, कौन है वो व्यक्ति जो इसे खाना चाह रहा है? जैसे ही धेनुकासुर अपने गधे रूपी शब्दों के साथ चीखते, चिल्लाते हुए दौड़ता आया, उसने देखा कि सफ़ेद वर्ण में बलराम जी बिल्कुल उस ताल वृक्ष को हिला रहे हैं, जिससे फल गिर रहे हैं और बच्चे उस सारे फलों को संग्रह कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत कुपित हो गया और उसके बाद उसने अपने दोनों पैरों से बलराम जी के छाती पर जोर से उसने देकर धक्का मारा। और जैसे ही ये छाती पर लगा, बलराम जी मुस्कुराने लगे कि ये कैसा गधा, असली में कैसा गधा है, इसको मालूम नहीं कि किसके साथ लड़ाई करनी है। और जैसे ही वो भाग के आया, बलराम जी ने उसको पकड़ा और उसको जोर से फेंका। और जैसे ही आचार्य जन कहते हैं कि उन्होंने इतना दूर फेंका कि वो 1 योजन दूर, यानी कि 8 मील या 13 किलोमीटर दूर जाकर गिरा वो। जैसे ही गिरा तो उसे पता चला कि मेरा जो टक्कर है, कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ है जो बड़ा बलशाली है। तो वो झटक से उठा, जिस प्रकार से घोड़े और गधे जैसे ही गिरते हैं, वो ज़्यादा देर नीचे नहीं रहते हैं, वो फटक से उठते हैं। पूरी तरह से उठा और उसके सर पर 4 सींग आने लगे और चारों सींगों के साथ वो दौड़ता चला आया कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। पहले तो वो कृष्ण के पास आया क्योंकि उसको लगा कि ये जो बलराम जी हैं, इन्होंने तो मुझे उठा के पटक दिया, इसको तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इसके सारे ग्वाल-बाल और इसके सारे गाय और बछड़े जो हैं, उसको मैं थोड़ा ठीक कराता हूँ। क्योंकि इस गाय और बछड़ों के कारण ही ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही वो 13 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, वो उठा और गाय और बछड़ों को थोड़ा इर्द-गिर्द जाने के लिए उसने उत्सुकता कर दी। तो वो बछड़े और गाय जो हैं दोनों डर गए और वो वहाँ यहाँ-वहाँ चितर-बितर भागने लगे। और भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उनका नाम गोविंद है, जो बछड़ों और गायों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अभी रंग में उतर गए कि अब मेरा अगर गाय बछड़ों के साथ खेलोगे, मेरे ग्वाल-बालों के साथ खेलोगे, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो वो चारों सींगों के साथ वो धेनुकासुर पूरी तरह दौड़ा और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचा उनको मारने के लिए। भगवान ने भी उसको बराबर उसके दोनों पैर को पकड़कर इस प्रकार से घुमाकर उसको फेंका कि वो बहुत दूर जाकर गिर पड़ा। गर्ग संहिता में बहुत अच्छी तरह से ये पास टाइम का वर्णन है, जहाँ पर वो कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और धेनुकासुर लड़ रहे थे और बलराम जी भी लड़ रहे थे। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये उसके ऊपर मैं फेंकूँ। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उठा लिया हाथ से और उसको धेनुकासुर के ऊपर फेंका। धेनुकासुर ने उसको कैच किया और वापस उसको उसके ऊपर कृष्ण के ऊपर फेंका और कृष्ण ने वापस कैच किया। और हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये जब पकड़ा पकड़ी चल रहा था तो सारे लोग क्लैप कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण पकड़ते हैं तो सब लोग एक साथ चिल्ला रहे थे कि भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, नंद लाला की जय हो। और जैसे ही धेनुकासुर गोवर्धन को पकड़ लेता था और उसको गेंद की तरह वापस फेंकने की कोशिश करता था, तो सब लोग कहते थे बू, धेनुकासुर का कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से पकड़ा-पकड़ी का खेल चल रहा था। इसके बीच में वो सिर्फ दर्शक नहीं थे, हमारे आचार्यगण बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि कैसे एक-एक ग्वाल-बाल भी कृष्ण का सहयोग दे रहे थे। श्रीधाम जो था उसने लकड़ी लेकर धेनुकासुर के सर पे मारा, बोला ये ले, तुझे भी मैं मारता हूँ। इसके बीच में सुबल जो था उसने जाकर एक मुक्का मार के आया धेनुकासुर को, बोला ये पकड़, तू हमारे ताल फल को खाने नहीं दे रहा है। स्तोक कृष्ण जो था भगवान के साथ, उसने रस्सी देकर पूरी तरह से उसके पैर को जकड़कर खींचने की कोशिश की।
अर्जुन जो था उसके दोनों हाथों को उसके दोनों हाथों से उसके पैर को पकड़कर धक्का दे रहा था और उसको टॉस कर रहा था। तेजस्वी करके जो लड़का था वो उसे पूरी तरह उसके गले को पकड़कर उसे स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा था, उसे निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। सब लोग जुटे हुए थे। इसके बीच में वरुथपा जो था वो बहुत ही छोटा लड़का था, उम्र में इन सबसे काफ़ी कम था, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो वो सिर्फ मिट्टी के गेंद बनाता था और वो धेनुकासुर के ऊपर फेंकता था, "ये ले, एक और मारता हूँ मैं तेरे ऊपर।" मेरे कृष्ण को मारता है, मेरे बलराम को मारता है। तो वो एक छोटे-छोटे मिट्टी के जो बॉल होते हैं, उसको गेंद बनाकर धेनुकासुर के ऊपर मारता था। और धेनुकासुर ये सब सहता था। पहले ही कृष्ण और बलराम के मार खा रहे हैं और ये जो छोटे-मोटे लोग जो हैं, उनको मार रहे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोवर्धन को उठाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने गोवर्धन को वापस रख दिया और उन्होंने धेनुकासुर के साथ लड़ने लगे। थोड़ी देर लड़ने के बाद धेनुकासुर थक गया, उसको लगा कि कृष्ण के साथ लड़ना नहीं चाहिए। ये सारा खेल किसने शुरू किया? ये शुरू किया बलराम जी ने। तुरंत वो बलराम जी के पास गया और बलराम जी के पास जाकर वो पूरी तरह से अपना दोनों पैर को उठाकर उनकी छाती पर मारने की कोशिश की, तो उनके पीछे के जो जो पैर थे उसको पकड़ा और उन्होंने पूरी तरह से इस प्रकार उन्होंने आकाश में घुमाया कि वो घुमाने के वजह से ही धेनुकासुर ने अपने प्राण त्याग दिए और उनको इस प्रकार से फेंका, तो सभी लोग जब घुमा रहे थे तो सारे बच्चे बोल रहे थे, "फेंको, फेंको, फेंको।" कहाँ फेंके उसको अभी? उसको फेंका उस ताल वृक्ष के ऊपर जिसके कारण वो गिरा तो सही मगर ताल वृक्ष के वृक्ष गिरे, उसके साथ फल भी गिरे। वो सारे फल नीचे गिरे और बच्चे अत्यंत खुश हो गए कि धेनुकासुर मारा गया और धेनुकासुर मरने के बाद सारे ताल के जो फल हैं, वो उनके पास पहुँच गए। तो इस खुशी के लहर मनाते हुए कुछ बच्चे एकदम कहने लगे दाऊ भैया की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, नंद लाला की जय हो, ताल वन की जय हो। पर कुछ बच्चे अभी भी डर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। जैसे ही धेनुकासुर पूरी तरह से गिर पड़ा, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकली। उस आत्मा ने दोनों कृष्ण और बलराम को पूरी तरह से तीनों ओर उन्होंने पूरी तरह से परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद आचार्यगण कहते हैं कि वैकुंठ से रथ आया जिस पर वो बैठकर वापस वैकुंठ चला गया। इस दृश्य को जब इन बच्चों ने देखा तो उनको लगा कि ये जो है ये सच्ची में एक अद्भुत घटना है, इसको जाकर यशोदा मैया सबको बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो खुश हो गए। मगर कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे कि ये अद्भुत घटना है मगर ये असुर है, इसके इसके शायद इसके मृत शरीर में अभी भी इसके पास जीवन होगा, तो कुछ लोग उसके शरीर के पास जा नहीं रहे थे। इसलिए गर्ग संहिता और इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है कि बलराम जी ने चक्र बुलाया और चक्र बुलाने के बाद उन्होंने धेनुकासुर का सर का वध किया और सर का वध करने के बाद दिखाया देखो ये मृत शरीर है, इसमें जान नहीं है, ये वैकुंठ जा चुका है, तुम बिल्कुल बिंदास होकर ये ताल के फल जो है आनंद लो। जब उन्होंने देखा कि उसका धेनुकासुर का वध हो गया तो उसके सहबंधु जितने भी रिलेटिव्स जो बाकी सारे गधे थे, उनको लगा कि अभी ये कृष्ण और बलराम को मजा चखाना चाहिए और वे सब भागते हुए आए एक साथ अटैक करने के लिए। कृष्ण और बलराम ने कहा तुम लोग सारे ताल फल संभालो, इन सारे सहबंधुओं को हम संभालते हैं। उसकी एक-एक फैमिली को कृष्ण और बलराम जिस प्रकार से लड्डू उछालते हैं, उस प्रकार से उछाल रहे थे और उछाल-उछाल के फेंक रहे थे। एक-एक गधा जब एक-एक असुर जब एक-एक वृक्ष के ऊपर पड़ा तो वहां से ताल फल की वर्षा होने लगी और उससे और सुगंधित होने लगा ताल के वृक्ष और उन्होंने इतने सारे इकट्ठा किए और इतने सारे फल खाए कि ग्वाल बाल जो हैं वो आनंद मचा रहे थे और वहां पर धेनुकासुर की सारी जो वंशज थी वो एक-एक करके खत्म हो रही थी। इस प्रकार ताल वन में भगवान ने इतनी सुंदर लीला की जो है धेनुकासुर का वध किया। ये तो था कहानी, अब मैं 5 मिनट और लूँगा। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इसको जानने की ज़रूरत है और इसमें 2-3 चीज़ें जो हमारे आचार्यगण ने इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं, उसको भी जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर
मैंने एक श्लोक कहा था, जहाँ पर मैंने कहा कि किस प्रकार से बलराम जी ताल वन के अंदर आए और उन्होंने इतनी बड़ी पेड़ को उन्होंने हिलाया जिससे ताल के फल गिरे। उस श्लोक में वापस पढ़ता हूँ क्योंकि हमारे आचार्यगण बहुत ही लेंस लेकर हमें इसमें दर्शाते हैं कि इसकी मधुरता क्या है और श्रीमद् भागवत कितना सुंदर है। 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बल प्रविश्याय बहुभ्याम तालन संपारिकंपयान फलानि पतयन्नाशा मतान गज्ज इवाउजसा। कि बलराम जी ताल वन के अंदर आए और हाथी जैसे मदमत्त होता है उस प्रकार से इस ताल के वृक्ष को हिलाए जिससे ताल का फल गिरा। ये ऊपरी ऊपर अगर संस्कृत को पढ़ें तो इसका मतलब ये निकलता है, मगर हमारे आचार्यगण कॉमन लोग नहीं थे, वे रस में डूबे हुए थे। तो वे एक संस्कृत का एक अनुमान नहीं, एक रूल बुक लगाते हैं, एक रूल लगाते हैं जिसका नाम कहा जाता है रलयोर अभेदा। यहाँ पर क्या किया जाता है कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि शब्द र, र से राम, र और ल, ल से लवणासुर, ल। तो र और ल को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये अलाउड है संस्कृत ग्रामर में। कई सारे टाइम पे आप श्रीमद् भागवत देखो तो जैसे कि कहीं कहीं पे प्रहलाद कहा जाता है, कहीं कहीं पे कहा जाता है प्रहराद। दोनों प्रहलाद को ही संबोधित कर रहे हैं, मगर इस रूल बुक के अनुसार र और ला को आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से चेंज किया गया तो हम इस श्लोक को वापस पढ़ें तो इसका मीनिंग और डीप में जाकर पता चलता है कि वो ताल वृक्ष ल, ताल को तार वृक्ष के नाम पे से भी जाना जाता है। तार, ताल और तार, क्योंकि इस शब्द और रूल बुक से हम दोनों चेंज कर सकते हैं, तो इससे इसका क्या मीनिंग निकलता है। यहाँ पर हरिसौरी नामक एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर तरीके से इसका तात्पर्य दिया है कि बलराम जी वो आदि गुरु हैं, वे वो आदि गुरु हैं, इसलिए सारे जीवात्मा जो हैं वो उनसे कह रहे हैं कि हे राम राम महाबाहो, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। तो बलराम जी जाते हैं और किसको हिलाते हैं? उस वृक्ष को हिलाते हैं। और वो वृक्ष क्या है? वो वृक्ष जो है वेद है, वेदों के वृक्ष हैं। और वेदों के वृक्ष में क्या फल लगता है? श्रीमद् भागवत का फल लगता है। इसलिए सबसे पहले अध्याय में, सबसे पहले स्कंद में निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवत के बारे में कहा गया है। निगमम गलित, वेद के वृक्ष पे जो सबसे रसीला फल उगता है वो है श्रीमद् भागवत। और वो जो फल है, जो वे आदि गुरु जो हैं, आदि बलराम जो हैं, जो सबके गुरुओं के गुरु हैं, वे हमको जाकर जब वेद पुराणों को खिलाते हैं तो उसमें से जो उसका फल श्रीमद् भागवत है वो नीचे गिरता है। और ये ताल वृक्ष नहीं है, तार वृक्ष है। तार का अर्थ है प्रणवाकार या ओमकार। जो काफी सारे ओम, ओम तो आप हम सब लोग जानते हैं। वेदों में कहा गया है कि उसके उच्चारण बार बार करने से भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का रचना और उसके बारे में सुनने से भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो आदि गुरु बलराम जब इस वेद नामक इस वृक्ष को हिलाकर श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है उसको जब नीचे गिरता है और उसका आस्वादन जब लोग करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम। तो इस पूरे जो पास टाइम है इसमें इसका गुह्य मीनिंग ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार से बच्चे भी हमें ये नजर दिखाते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। उनके कृपा के बिना कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। और दूसरा अर्थ ये भी है कि धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर गधा है। और गधा का
उल्लेखन कैसे है? इग्नोरेंस यानी कि तामसिक और अंधकार में हमेशा पाया जाता है। उसमें खुद की बुद्धि नहीं होती, उसमें खुद की क्षमता नहीं है उसे समझने की सही क्या है, गलत क्या है। तो उसकी खुद की बुद्धि नहीं है तो वो गधा है और वो गधा है पर हमें ये सोचेंगे कि गधा तो क्या खाता है? घास खाता है। पर यहाँ पर वो किसी फल की संरक्षण कर रहा है। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि गधा घास खाता है, पर उसे लगता है कि ये फल दूसरे लोग खाते हैं, इसको खाने से उनको बहुत लाभदायक होता है, उनको बहुत रसीला लगता है। मुझे रसीला नहीं लगता, मुझे तो घास ही रसीला लगता है, पर ये लोगों को खुशी मिल रही है, इस खुशी को मुझे रोकना चाहिए। तो अगर असुर के आँखों से देखें कि दूसरों की खुशी को रोकने वाला वो असुर है। दूसरों की खुशी में दुःख मनाने वाला वो असुर है। दूसरों के दुःख में दुःख बाँटने वाला वो वैष्णव है। पर दुःख दुखी वो वैष्णव है। तो यहाँ पर आचार्यगण कह रहे हैं कि हमें वैसा धेनुकासुर जैसा असुर नहीं बनना चाहिए जिसकी इच्छाएँ इन फल की तरह है, जो वो पाना चाहता है और दूसरों को पाने के लिए रोकता है। और इस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया यानी कि हमारे हृदय में जो अज्ञानता है और जो ईर्ष्या भाव है कि दूसरों के सुख में हम कांटे बन रहे हैं, उसको अगर हमें निकालना है, तो हमें बलराम रूपी विश्व गुरु यानी कि आदि गुरु बलराम जी को हृदय में बिठाकर उस ताल वृक्ष यानी कि वेदों के संग्रह करते हुए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में हमारा वो अनर्थ जो अहंकार है, जो ईर्ष्या का भाव है और जो अंधकार है, उसे हटाकर कृष्ण नाम के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि इन नामों के द्वारा हमारे हृदय में वो अंधकार पूरी तरह से मिट सकता है। ये इस पास टाइम या इस लीला का पूर्ण रूप से इसका मूल अर्थ है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि हम इन श्रवणों से हम इस पूरे मन को नियंत्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। यहाँ पर नंदलाला तालवन में, मगर यहाँ के असली हीरो हैं नंदलाला के दाऊ भैया श्री बलराम और यहाँ पर कृष्ण बिल्कुल उनके साथ सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही श्री दाऊ भैया यानी कि नंद और नंद के लाला और रोहिणी नंदन जो बलराम जी हैं, हमारे हृदय में हमेशा निवास करें और हमें हमेशा सद्बुद्धि दें ताकि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ें और श्रीला प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य गणों को भी नमन करते हुए हम यही याचना करते हैं कि उनकी जो भक्ति है और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, हम इस संसार में जब तक जी रहे हैं, तब तक हम उनमें कुछ ना कुछ बिल्कुल सीखने की एक अनुमति ज़रूर दें। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगर किसी को कोई प्रश्न है या सवाल है तो वे पूछ सकते हैं इस चैट से। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है, क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, देयर सीम्स टू बी आई हैव ओके। प्रश्न है कि दूसरों की गलतियां ढूंढना हम सब में कहीं न कहीं एक फॉल्ट है, तो इस अनर्थ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। अम, एक चीज़ कहा जाता है कि वृंदावन में अगर हमें रहना है या निवास करना है या ये इच्छा रखनी है या भक्ति में रहना है, ये इच्छा रखनी है, तो दूसरों की निंदा करना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। पहले तो ये कहना सही होगा कि
मैं इस पे विजयी प्राप्त नहीं हुआ हूँ। पर अ, आचार्यों के कहने से उनका जो उद्देश्य है, जो उनके मार्ग चलन पर जैसे मैंने कहा, उस पथ पर ज़रूर चल सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम किसी की निंदा करना चाहें, तो उससे पहले 2 मिनट सोच लीजिए कि उनकी ग्लोरिफिकेशन कितना हो सकता है, उनकी प्रशंसा क्या-क्या है, उनके अच्छे गुण क्या हैं। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जितनी भी याचनाएँ, प्रेयर या 2 भक्त चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं या श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, तो वे हमेशा यही चीज़ देखते हैं कि एक-दूसरे की प्रशंसा किस प्रकार से की जाए। वो एक-दूसरे के बारे में अच्छा कहते हैं कि आप किस भक्ति में आगे हैं या आपकी भक्ति में क्या-क्या लक्षण हैं या आपके भक्ति में कितने अच्छे गुण हैं। इस प्रकार से वे जब एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं, ये बिल्कुल ऊपर ही ऊपर से प्रशंसा नहीं करते हैं, मतलब हृदय से, बिल्कुल अच्छे भाव से और उनको सीनियर या फिर उनके भक्ति जो है उससे हम प्रेरित होकर जब हम अच्छी तरह से उनके बारे में कहते हैं, तो हमारे मन में जो ये निंदा का भावना है, वो थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा। और जब हम अच्छी तरह से जप करेंगे, तब हम दूसरों में गलतियाँ नहीं ढूँढेंगे। ये एक दूसरा यार्डस्टिक है या एक दूसरा नाप है जिसको हम नाप सकते हैं। जब हमारा हृदय पूरी तरह से मृदुल नहीं होता है जप के कारण, जब हमारा जप ठीक नहीं है, तो दूसरों में गलतियाँ हम और जल्दी देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जप करते हैं, तो हम अपने आप को नीचा दास दास अनुदास अनुदास करके मानते हैं। तो तब कोई हमें कुछ कहे तो हम ऑलरेडी नीचे हैं, तो हम और कितना हम नीचे दबेंगे। पर जब हम जप नहीं करते हैं तो हमारा ईगो आगे ऊपर बढ़ता जाता है और हम धेनुकासुर की तरह ऊपर-ऊपर और भी उनके अहंकार के रूप में हम बढ़ते जाते हैं। तो जब जब जप नहीं करते हैं तो कोई कुछ कह भी देगा तो हमें तुरंत चोट लग जाएगा और हम दूसरों की निंदा करने लगते हैं। तो अच्छा जप और सही शिष्टाचार यानी कि उनके प्रशंसा करते हुए उनके अच्छे स्वभावों को के बारे में बताते हुए हम इस जो गलती है, इस अनर्थ है, उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और भक्तों के संग में रहकर उनको देखकर भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे जो ये डिज़ीज़ है, उसको हम कम कर सकते हैं। और कोई सवाल या प्रश्न? थैंक यू। अगर और कोई सवाल नहीं है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।